आप देखें FSH or LH. FSH is called follicle stimulating hormone. It is basically follicle stimulating hormone. And LH is called luteinizing hormone. Luteinizing hormone. Both are collectively called gonadotropins. These both FSH and LH are collectively called gonadotropins. These are secreted, we will discuss their origin. These are secreted from anterior pituitary. Anterior pituitary glands, both these hormones are secreted and their origin is basically anterior pituitary. And we know that follicle stimulating hormone act on basically LH and FSH. Both are called gonadotropins and these act on the interstitial cells. Interstitial cells, there are two types of cells present in our brain. Male organ, testes, is male organs. Yes. One is called sertoli cells, sertoli testicles, and other is called Leydig cells. There are two types of cells. If I make a male organ that is called, I will make unit that is called testes. And we will know that testis is made up of seminiferous tubules. This is a seminiferous tubules. Seminiferous tubules are surrounded by Sertoli cells. This is Sertoli cells. We know that. Basically, seminiferous tubules are surrounded by, and inside seminiferous tubule, we know that the spermatogenesis occurs. And spermatogonia are produced inside these seminiferous tubule. Here, this is a spermatogonia. So these are called basically Sertoli cells. Sertoli cells nourish the spermatogonia and gonadotropin hormone, both FSH and LH, also stimulate Sertoli cells. And due to Sertoli cell stimulation, spermatogenesis process is going to be rapid. Spermatogenesis become occur in more faster way. And these are surrounded by another type of cells that are called leading cells. What leading cells do? Basically, leading cells secrete another hormone that is called testosterone. This is called leading cells. Leading cells secrete hormone that is called testosterone. This is male sex hormone. And both FSH and LH also bring about the production of ovaries and as well as testes, development of ovary and as well as testes. Development of ovary and testes mean development of ovarian follicles, and you we can say if this one is the uterus and this one is the ovary, basically this one is the ovary and
and this one is the familial. This one is the fallopian tube, and this one is the and inside the ovary, we know if we make a cross section of this ovary, inside the ovary, we know that there are certain Graafian follicles, and inside the Graafian follicle, oocyte is surrounded by granulosa cells. You will look here. This is type of cell that is called granulosa cells. The leading cell is present outside of the testes. Leading cells not present outside the testes, but it is present outside the follicle. So this is outside the seminiferous tubule. This one is the seminiferous tubule. This seminiferous tubule is surrounded, and it is not present outside the testes, but it surrounds the outside of the seminiferous tubule. Basically, it's outside of the seminiferous tubule means it is also superficial layer of you can say Leydig cells. So it is also superficial layer of testes. So superficial layer when it is stimulated by the FSH and both LH. FSH and LH stimulate it release testosterone. Yes. And FSH and LH also stimulate the ovaries. And ovaries are surrounded by specific type of cells that are called oocyte is surrounded by specific type of cell that is called granulosa cells. Granulosa cells also help in the maturation of this oocyte. Yes. And Graafian follicle is also surrounded by another type of cells that are called, these are another type of cells which are this Graafian follicle is also surrounded, that are called theca cells. Theca cell also release estrogen. Estrogens help in the maturation of ovary, and another second type of cells, granulosa cells, they also maturation of ovary as well as maturation of the estrogen, especially help in maturation of ovary as well as maturation of uterus. And progesterone is another hormone that is secreted from the ovary. We will discuss later in this topic the role of progesterone. But here we will come to know about the FSH and LH. These act over the ovaries, their target areas of ovaries as well as testes. In the ovary, it acts on the granulosa cells that surround the oocytes as well as upon the theca cell that surround the Graafian follicle. And theca cell release estrogen. Estrogen further help in maturation of oocytes, and granulosa cells also give nourishment to the oocytes and further the process of. Now next, if we will see the role of granulosa cell will be overall help in the process of oogenesis plus follicles formation. Follicle for instead of this we will write follicle development. Yes. And theca cell release estrogen as well as estradiol. These are two major types of hormones that are secreted by the theca cells. And what leading cell do? Leading cells in case of male testes release testosterone. And testosterone, what we will discuss later, it will develop the secondary sexual character in male. And if we will discuss about the role of FSH and LH, basically these are anterior pituitary hormones. These indirectly we can say their function. These are made up of glycoprotein
and their function is basically glycoprotein. Their function is basically maturation, that is called tubercular maturation, plus development and maturation of sex organ. Development plus maturation of sex organs. It's their role. Next, we will discuss if continuous LH secreted. If LH hormone is continuously secreted, what it do? Let us try to explain. Continuous concentration of LH. Continuous concentration of LH. This is called luteinizing hormone or leukotropic hormone. This is also called luteinizing hormone, and basically LH also act on the ovary and developments of ovarian follicle on both sides. Its major role is if continuous it is secreted from the anterior pituitary, what will happen? It will stimulate corpus luteum, outer wall of uterus, corpus luteum. This is not outer wall. Basically, corpus luteum is called. This is also called corpus luteum. Luteum. Corpus luteum. This will release the progesterone. Progesterone will help to maintain the pregnancy. This is continued concentration of LH will stimulate the corpus luteum. Corpus luteum will release the progesterone. This is continuous releasing of LH. So here we will discuss the two major types of hormones that are secreted by the anterior pituitary that act on the gonads, male and female gonad. अच्छा नेक्स्ट we will see pubertal growth भी हम कह सकते हैं, pubertal maturation भी इसका another case में रोल कह सकते हैं, development है, maturation है, male female sex. चाइल्डहुड में कार्पस लुटियम होती है सर, चाइल्ड में, बच्चों में सर. देखो बच्चों में कार्पस लुटियम जो होती है ये बेसिकली फीमेल के अंदर होती है, ओवरी. इसको हम कह सकते हैं जो यूट्रस होती है, ठीक है, ओवरी का ओवरी जो होती है इसकी जो आउटर वॉल है इसको हम कार्पस लुटियम कहते हैं. और ये प्रोजेस्टेरॉन जब सेक्रीट करेगी, प्रोजेस्टेरॉन विल हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ यूट्रस. यूट्रस को मस्कुलाराइज करेगा, मतलब ये कार्पस लुटियम मैन में नहीं होती. नहीं मेल में किधर होती है? देखो ये दोनों यूनिट्स की डेवलपमेंट है, एलएच है, एफएस है. यस. और दोनों का रोल मैं आपको बता रहा हूं कि एलएच जो ज्यादा होता है, वो एलएच का जो रोल होता है ज्यादातर वो मेल के अंदर होता है, और एफएसएच फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ज्यादातर रोल जो है फीमेल के अंदर है. फीमेल के अंदर ये दो तरह के सेल्स हैं, एक थीका सेल्स है और एक ग्रेनुलोसा सेल्स है. थीका और ग्रेनुलेशन सेक्रीट दोनों के अंदर होते हैं और दोनों का मकसद यूनिट्स की डेवलपमेंट है, वो चाहे मेल यूनिट है चाहे फीमेल यूनिट है. लेकिन एफएसएच चूंकि फीमेल यूनिट को मैच्योरेट करता है, फीमेल यूनिट में क्या होता है, ओवरी होती है, ओवरी के अंदर दो ग्रेनुलोसा सेल्स होते हैं जो दो साइड्स को, और ग्रेनुलोसा सेल से मैंने आपको बताया है कि एक फॉलिकल डेवलपमेंट होती है, वो जेनेसिस शुरू हो जाती है. वो जेनेसिस का प्रोसेस एक मियोसिस के थ्रू होता है. अब इसके जो आउटर सेल है, थीका सेल्स है, वो एस्ट्रोजन प्रोड्यूस करते हैं. एस्ट्रोजन का भी काम सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर इन फीमेल के अंदर है. और एलएचएफ ज्यादातर मेल के अंदर दो तरह के सेल्स हैं, एक सर्टुलाइज सेल्स है, मेल यूनिट क्या है, मेल टेस्टिस है, और सर्टुलाइज सेल्स है, और इसके बाद लीडिंग सेल है. लीडिंग सेल टेस्टोस्टेरोन बनाएंगे और सर्टुलाइज सेल स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करेंगे. स्पर्मेटोजेनेसिस से स्पर्मेटोगोनिया बनेंगे और सर्टुलाइज सेल बिल्कुल अंदर पड़े होते हैं. और कैसे स्पर्मेटोजेनेसिस को एनहांस करते हैं? बेसिकली ये जो अंदर वो गोनियम होता है इसकी नरिशमेंट करते हैं, इसको फीड अप प्रोवाइड करते हैं, इसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं, इसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं. तो इसकी स्टिमुलेशन बेसिकली ये है. तो बेटर मैच्योरेशन प्लस ग्रोथ प्लस डेवलपमेंट, यानी मेल यूनिट और फीमेल यूनिट. बच्चे इसमें यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एक दूसरा एंटीरियर पिट्यूटरी जिसे प्रोलैक्टन कहते हैं. ये अगर हम प्रोलैक्टन की बात करें
तो अब आप देखेंगे दोनों टेस्टिस और ओवरीज की डेवलपमेंट के हार्मोन है। मैं आपको सेलुलर लेवल पे बेसिकली लेके जा रहा हूँ। तो इसमें सेंट्रलाइज सेल्स हैं या ग्रेनुलोसा सेल्स हैं ये फीमेल के अंदर। तो इसका रोल भी आप देखते हैं, लेकिन दोनों का काम है मैच्योरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ टेस्टिस एंड ओवरीज। तो गोनेड्स की डेवलपमेंट है, इसी वजह से इनको हम गोनेडोट्रोपिन भी कहते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास एक हार्मोन है जिसे प्रोलैक्टिन कहते हैं, पीआरएल। ये पीआरएल इंटीरियर पिट्यूटरी से आता है, इसको पीआरएल कहते हैं। इस हार्मोन का सेकंड इंपॉर्टेंट नेम है, इसको हम ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं, एलटीएच भी कहते हैं। इसको हम ल्यूकोट्रोपिक हार्मोन भी कहते हैं। ल्यूकोट्रोपिक इसको हम एलटीएच भी कह सकते हैं। प्रोलैक्टिन के जो रिसेप्टर्स हैं, these are present on the mammary glands. Mammary glands are located at the breast. Mammary glands देखें, mammary glands is made up of specific secretory epithelial cells that secrete the milk. इसके secretory cells हैं that secrete milk. इसमें ये basically secretory cells हैं, and this one is their colloids जहाँ पे milk मौजूद है. This one is the milk, and here is another cell that are called myoepithelial cell and myoepithelial cell. Here is myoepithelial cells होते हैं, epithelial cells होते हैं, और these are called secretory cells. Secretory cells, और ये क्या secrete करते हैं? ये milk secrete करते हैं. This is the milk. ये milk secrete करते हैं. इसको ये secretory cells है, इसको जाके प्रोलैक्टिन स्टिमुलेट करता है और मिल्क की प्रोडक्शन करता है। ऑक्सीटोसिन कहाँ पे आता है? देखो ऑक्सीटोसिन ये कौन से सेल है? मायोएपिथेलियल सेल है। ऑक्सीटोसिन इस पे आता है, ऑक्सीटोसिन इस पे आके क्या करता है? इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, जिसकी वजह से इंजेक्शन ऑफ मिल्क पॉसिबल। सेक्रेटरी सेल्स बेसिकली that are made up of outer layer of cells. ये क्या बनाते हैं? ये मिल्क बनाते हैं, इसको स्टिमुलेट जो करता है वो प्रोडक्ट। बच्चे क्या हो रहा है कि आपका ये मेमरी ग्लैंड है, ये आपकी एल्वियोलाई है, ये आपकी एल्वियोलर डक्ट है, और ये यहाँ पे एम्पुला होता है, और इसके बाद ये जो है ना पूरी एक निप्पल होती है जहाँ से मिल्क आउटसाइड बह रहा है। This is alveolar lobule. इसको हम alveolar lobule कहते हैं। इसको जो है ना, इस alveolar lobule है, ये इसकी डक्ट है, मेमोरी डक्ट कहते हैं। यहाँ पे ये एम्पुला होता है और यहाँ पे ये निप्पल, यहाँ से मिल्क निकलना शुरू होता है। प्रोलैक्टिन स्टिमुलेशन. This is the due to the stimulation of prolactin, जिसमें secretory cells more and more milk produce करेंगे, secrete करेंगे, milk यहाँ store हो जाएगा। Myoepithelial cell को ऑक्सीटोसिन का रोल नेक्स्ट पढ़ते हैं, वो कैसे इसको कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, मसल्स को कैसे कॉन्ट्रैक्ट करवाता है, और यहाँ एल्वियोलर और ल्यूल के थ्रू ये ऐसा ऐसा मिल्क बह आना शुरू हो जाता है। ये निप्पल होती है जहाँ से मिल्क सेक्रेट होना शुरू होता है। ये हमारा प्रोसेस है, रोल है प्रोलैक्टिन का कि मिल्क इंजेक्शन में कैसे रोल प्ले करता है। तो इसके बाद हम इसको डेवलपमेंट भी, ब्रेस्ट की डेवलपमेंट भी कह सकते हैं। ये भी इंटीरियर पिट्यूटरी से सेक्रेट होता है, और आपके जो फीमेल के जो ब्रेस्ट हैं, जो इसके चेस्ट है, जो उसके सेक्रेटरी सेल हैं, ये इसका टारगेट ऑर्गन है। तो रीजन कहाँ से है और टारगेट एरिया कहाँ से है, और मिल्क की प्रोडक्शन में इसका रोल हमने डिस्कस किया। इसके बाद हम एक दूसरे हार्मोन के मीडियन लोब की तरफ जा रहे हैं। देखो मीडियन लोब्स के बारे में मैंने आपसे डिस्कस किया था। पिट्यूटरी ग्लैंड्स का जो मीडियन लोब है वो किससे बना होता है? ये देखो, ये हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था। ये इंफेंडिबुलम है, दिस इज द इंफेंडिबुलम। हमने दिस इज द पोस्टीरियर लोब,
and this in between them there are specific cells that make the median low. That is also called intermedian. इसको हम its specific name also we will give intermedium median. ये स्पेसिफिक सेल्स होते हैं, ये क्या काम करते हैं? इट विल अंडर डू द प्रोसेस ऑफ मेलानोजेनेसिस. मेलानोजेनेसिस क्या फंक्शन है? मेलानिन पिगमेंट की प्रोडक्शन है, मेलानिन पिगमेंट बनाएंगे ये, इसको हम मेलानोजेनेसिस भी कहते हैं. इसका जो रोल है, हार्मोन कौन सा रिलीज होगा? इसके देखो, इसको हम कहते हैं मेलानोस्टिमुलेटिंग हार्मोन, मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसको हम मेलानोट्रोपिन भी कहते हैं. दिस इज आल्सो कॉल्ड मेलानोट्रोपिन. दिस इज आल्सो सेक्रेटेड बाय द मीडियम. देखो ना, स्पेसिफिक सेल्स, इसको हम इंटरमीडिएट भी कहते हैं. ये सेल्स क्या करते हैं? दिस इंड्यूस द प्रोसेस ऑफ मेलानोजेनेसिस. कौन सा हार्मोन सेक्रेट करते हैं? मेलानोट्रोपिन या मेलानिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन. इसकी इनहिबिशन कहां से होती है? बच्चे, एक हाइपोथैलेमस जो मैंने आपको बनाया है, हाइपोथैलेमस से एक और हार्मोन आता है जो इसको इनहिबिट करता है. इसको हम कहते हैं मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन इनहिबिटरी. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन भी कह सकते हैं. ये हाइपोथैलेमस से आता है और ये मेलानोजेनेसिस, मेलानिन की सिंथेसिस करवाता है, मेलानिन पिगमेंट को प्रोड्यूस करता है. ये बेसिकली अगर इसकी हम बायोकेमिस्ट्री देखें कि ये पेप्टाइड है, इसको हम न्यूरोपेप्टाइड भी कह सकते हैं. और इसकी अगर हम देखें मेलानोजेनेसिस कराएगा तो इसमें ज्यादातर ये होता है कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटेड हार्मोन प्रेगनेंसी की सूरत में ये ज्यादा सेक्रेट होता है. जब फीमेल प्रेग्नेंट होती है, व्हेन इट इज प्रेग्नेंट, तब इसकी सेक्रेशन ज्यादा होती है. इसका टारगेट एरिया कौन सा है हम डिस्कस करेंगे. इसका जो टारगेट एरिया है वो है आपका स्किन है और आपके हेयर है. इसको क्या करता है? मेलानिन इसको मजीद ब्लैकिश कर देगा. स्किन कलर ब्लैक हो जाता है या हेयर मजीद ब्लैक हो जाते हैं. प्रेगनेंसी की सिचुएशन में इसकी सेक्रेशन ज्यादा होती है, तो ये स्किन और हेयर पे एक्ट करता है और ये मजीद उसको. और इसको अगर हम मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन देखें, इसका अल्फा सब यूनिट होता है वो जो कि 13 अमीनो एसिड से बना हुआ है, और इसका जो बीटा सब यूनिट है वो 22 अमीनो एसिड से बना हुआ है. इसकी दो जीन में ये एग्जिस्ट करता है, उनके पेप्टाइड है, इसको हम न्यूरोपेप्टाइड भी कहते हैं. आपको पता है कि ये मेलानोसाइट प्रोलैक्टिन है, इसको वो तो हमने डिस्कस कर लिया. अब हम इसकी तरफ आ रहे हैं. मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इंटरमीडिएट, ये जो हिस्सा है दैट इज आल्सो कॉल्ड इंटरमीडिएट, जहां से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन खारिज होता है. ये काम क्या करता है? ये मेलानोजेनेसिस सिंथेसिस ऑफ मेलानिन पिगमेंट. कहां से? मेलानोसाइट से. मेलानोसाइट्स आपके बॉडी के अंदर सेल होते हैं और ज्यादातर आपकी स्किन पे और आपके हेयर पे ये मेलानोसाइट्स होते हैं. वहां पे अटैक करेगा और मेलानोसाइट्स को मेलानिन पिगमेंट में चेंज करेगा, जिसकी वजह से हमारी स्किन का कलर ब्लैक है. अब ये हार्मोन्स हैं जो कि जिसको एमएसएच कहते हैं, और इसका जो इनहिबिटरी फैक्टर है वो मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग इनहिबिटरी हार्मोन. और ये ज्यादातर आपके स्किन है और आपके हेयर पे अटैक करता है और उसकी आपकी मेलानिन की सिंथेसिस को रोकता है. लेकिन प्रेगनेंसी के सूरत में इसकी सेक्रेशन ज्यादा होती है और जिसकी वजह से जो फीमेल होती है वो क्या हो जाती है? वो ज्यादा ब्लैकिश हो जाती है. प्रेग्नेंट होती है जो ज्यादा ब्लैकिश हो जाती है और उसका कलर चेंज हो जाता है. और खास तौर पे जो
हेयर का ब्लैक कलर है वो भी मेलानिन पिगमेंट। प्रेगनेंसी के दौरान जैसे इसका रिलीज होना क्या? उसकी वजह ये होती है, देखें सबसे पहले ये है कि इसको हाइपोथैलेमस जो है ना मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ज्यादा रिलीज करता है, जिसकी वजह से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसकी वजह से यहाँ पे जो है ना यहाँ पे जो हार्मोन है इंटरमीडिएट लोब से जो हार्मोन जो रिलीज होगा, बेसिकली ये पिट्यूटरी से आ रहा है, हाइपोथैलेमस से आ रहा है मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और यहाँ पे इसको मेलानोट्रोपिन भी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो इसका एक्सेस बनेगा तो तो इसके बेसिकली ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है, मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन ये हाइपोथैलेमस से आ रहा है, और हाइपोथैलेमस से यहाँ पे आके ये मेलानोट्रोपिन यहाँ पे रिलीज करवा रहा है। ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो बेसिकली हम इस पे एक रिलीजिंग फैक्टर होता है, एक इनहिबिटरी फैक्टर होता है। सॉरी हम इस बात पे थोड़े से हो जाए, इसमें मेलानोसाइट रिलीजिंग फैक्टर होगा और यहां से मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये मेलानोसाइट रिलीजिंग फैक्टर होगा। इसको हम ये कहेंगे कि मेलानोसाइट रिलीजिंग फैक्टर, ये आगे मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज करवाएगा मीडियम लोब से। इसको हम मेलानोट्रोपिन भी कहेंगे। ये मैंने आपको बताया है, इट इज मेड अप ऑफ टू चेन्स, एक अल्फा चेन होती है, एक बीटा चेन होती है। अल्फा चेन 13 अमीनो एसिड्स और बीटा चेन 42 अमीनो एसिड्स। और ये क्या कराएगा, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर इसकी सेक्रेशन ज्यादा होती है, मेलानोसाइट रिलीजिंग फैक्टर पे डिपेंड करता है कि वो अगर ज्यादा रिलीज हो रहा है तो इसकी स्टिमुलेशन ज्यादा होगी और ऑटोमेटिकली स्किन ब्लैक हो जाएगी। अगर वो कम रिलीज हो रहा है तो ऑटोमेटिकली, असल में बेसिकली ये होते हैं कि जो प्रेगनेंसी की सूरत में ये सिचुएशन क्यों जनरेट होती है। प्रेगनेंसी की सिचुएशन में ये सिचुएशन इस वजह से जनरेट होती है कि फीमेल को मोर इम्यून सिस्टम चाहिए, मोर इम्यूनिटी के लिए ये ज्यादा से ज्यादा हार्मोन रिलीज करता है, जिसकी वजह से प्रेगनेंसी की सिचुएशन में वो ब्लैकिश हो जाती है। या जिस तरह अगर कोई डिजीज है तो उस टाइम भी अगर कलर ब्लैक होता है तो उसकी वजह भी ये है कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीज हो रहा है, और मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन मेलानिन पिगमेंट बनाएगा और स्किन का कलर ज्यादा ब्लैक होना शुरू हो जाएगा, और स्किन एक्सपोज टू स्ट्रॉन्ग रेडिएशन, यानी स्किन जो है ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, स्किन ज्यादा रोबस्ट हो जाएगी और स्किन हाई लाइट को भी मैक्सिमम वो रिफ्लेक्ट कर सकेगी। जब तक मेलानिन पिगमेंट नहीं होंगे स्किन जो होगी आपकी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर सकेगी। अब देखो हम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, तो अच्छा ये बात ये है कि इसको हम ये भी कह सकते हैं, तो ये मीडियल और पोस्टीरियर पिट्यूटरी की हम बात कर रहे हैं, ये मीडियम लोब्स की बात कर रहे हैं, तो ये मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहाँ पे रिलीज कर रहा है। अब देखिए बच्चे, इसका कहते हैं कि मेलानोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन एक और काम भी करता है, सेक्सुअल अराउजल का भी काम करता है। इस वजह से भी इसकी सेक्रेशन प्रेगनेंसी के दौरान ज्यादा होती है। That's why it act upon the sex organ that may increase the sexual arousal. Sexual arousal, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान क्योंकि सेक्सुअल अराउजल की इतनी जरूरत नहीं होती, क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान जो है ना बेबी की वो डेवलपमेंट होना होती है, लेकिन ये हार्मोन का सेक्रेट होना इस बात की भी निशानी है कि उस टाइम सेक्सुअल अराउजल भी फीमेल के अंदर ज्यादा करने की कोशिश करता है। अब हम पोस्टीरियर लोब की तरफ जाते हैं। देखो ये देखो, ये इंटीरियर लोब था, ये पोस्टीरियर लोब है, और पोस्टीरियर लोब से मैंने आपको बताया था ब्लाइंड एंटिक एक्सॉन डायरेक्टली इसके अंदर हार्मोन लेवल आ रही है, इसके अंदर कोई पिट्यूसाइट्स नहीं है, लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था, कोई स्पेसिफिक साइन नहीं।
हार्मोन ये क्या है? ये बेसिकली पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस है। पैरावेंट्रिकुलर न्यूक्लियस से क्या आ रहा है? ये दो किस्म में, एक एडीएच है और दूसरा ऑक्साइटोसिन। ये दो कहां पे और आ रहे हैं? पोस्टीरियर पिट्यूटरी। पोस्टीरियर पिट्यूटरी। अब यहाँ पे हार्मोन का आना, अब ये इसके बाद पोर्टल सिस्टम ब्लड के अंदर ये शामिल होंगे। और मैंने आपको बताया है कि यहाँ पे आर्टरी इंटर होती है और यहाँ पे आर्टरी बिल्कुल लीक करती है। ये इसके अंदर शामिल होंगे ब्लड के अंदर, और ये ब्लड के अंदर आ जाएंगे। ब्लड के अंदर ये इनका ओरिजिन बेसिकली हम हाइपोथैलेमस भी बता सकते हैं, पोस्टीरियर पिट्यूटरी से भी बता सकते हैं, सेक्रीट करते हैं। पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिंथेसाइज नहीं करता, सेक्रीट करता है। यहाँ पे ये सेक्रीट करता है। अब एडीएच क्या है? एडीएच अमीनो एसिड है, और कहते हैं 9 अमीनो एसिड से बना हुआ है। और इसका जो 8 अमीनो एसिड की जो पोजीशन है, इसके ऊपर आर्जिनिन होता है। नाइन अमीनो, इसका काम ये क्या होता है, इसको हम डिस्कस करते हैं। तो ये हाइपोथैलेमस के जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स हैं, वहां से ये रिलीज हो रहा है। इसको हम एंटी डाययूरेटिक हार्मोन कहते हैं। एंटी डाययूरेटिक का मतलब होता है, क्या होता है कि यूरिन को क्या कर देता है? कंसंट्रेट कर देता है। यूरिन फॉर्मेशन, हां, यूरिन फॉर्मेशन इसको एंटी, दूसरा इसको हम वैसोप्रेशन भी कहते हैं। वैसोप्रेशन का क्या मतलब होता है कि ब्लड प्रेशर को राइज कर देता है, हाइपरटेंशन की सिचुएशन में। इसको हम कहते हैं एंटी डाययूरेटिक हार्मोन। सर ऑस्मोल रेगुलेशन को भी मेंटेन करते हैं। हाँ, ये ब्लड प्रेशर है, इस ऑस्मोल रेगुलेशन हम इसका वाटर रीअब्जॉर्प्शन, वाटर से हम सेपरेट पढ़ते हैं कि वाटर कैसे रीअब्जॉर्ब, इस सेट के रीअब्जॉर्प्शन। जी, वाटर रीअब्जॉर्प्शन में हम इसका रोल डिस्कस करते हैं। वाटर रीअब्जॉर्ब कैसे कराता है बच्चे? ये डिसेंडिंग लंग है और यहाँ पे असेंडिंग लंग। इसका टारगेट एरिया किडनी है। डिसेंडिंग लंग के अंदर क्या करता है? असेंडिंग लंग के अंदर साल्ट रीअब्जॉर्ब होती है, डिसेंडिंग लंग के अंदर वाटर बाहर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आ जाता है। ये देखो बच्चों, ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, दिस इज इंटरस्टिशियल फ्लूइड। इंटरस्टिशियल ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। इसके अंदर वाटर के मॉलिक्यूल बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। किसकी वजह से? एडीएच। क्यों? एडीएच क्या करता है? इसके अंदर जो एक्वापोरेंस है, एक्वापोरेंस क्या कहते हैं इंग्लिश में? इसको क्या कर देता है? ओपन कर, ओपन करने के बाद मॉलिक्यूल पहले। यस। और यहाँ पे क्या पड़ी होती है? ब्लड कैपिलरीज पड़ी होती है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर दोबारा वाटर के ब्लड के अंदर जाना शुरू हो जाता है। ये ब्लड कैपिलरीज है। ब्लड कैपिलरीज के अंदर वाटर जाएगा तो क्या करेगा? ब्लड प्रेशर को राइज कर देगा। इस वजह से इसको हम कहते हैं कि ये हार्मोन वैसोप्रेशन क्रिएट करता है, ब्लड प्रेशर को राइज करता है। इसको इस वजह से भी वैसोप्रेशन भी कहते हैं। और इसको ये बिल्कुल डिसेंडिंग लंग पे जाके जो एक्वापोरेन है इसको डायलेट कर देगा। किडनी को जो ही डायलेट करेगा तो क्या होगा? एक्वापोरेन ओपन हो जाएंगे, और जो एक्वापोरेन ओपन हो जाएंगे वाटर मॉलिक्यूल बैक हो जाएंगे, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में अंदर आएंगे और ब्लड के अंदर ये अब्जॉर्ब हो जाएंगे। ब्लड देखो, कैपिलरीज ने इसको भी सराउंड किया होता है और अंदर इंटरस्टिशियल फ्लूइड में भी होते हैं। तो इस वजह से अब ये जब वाटर बाहर आता है ना, तो ऑटोमेटिकली वाटर बाहर आता है, सॉल्यूशन डाइल्यूट होता है। क्यों डाइल्यूट होता है? तो सोडियम और क्लोराइड एंड वाटर बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट। इसके बाद आपकी ये कलेक्टिंग डक्ट है। कलेक्टिंग डक्ट के अंदर भी कहते हैं कि वाटर के मॉलिक्यूल को जो है प्रेशर निकालने की कोशिश करता है कलेक्टिंग डक्ट।
क्योंकि यहाँ से यूरिया निकलता है, यूरिया की वजह से यहाँ से वाटर ऑटोमेटिकली सिंपल डिफ्यूजन के थ्रू निकलता है। लेकिन यहाँ पे ज्यादा हार्मोनल एक्शन क्लियर दिखाया गया है कि इसकी जो मौत की अथवा उसको डायलेट कर देता है और मौत में देता है। और ब्लड के अंदर जो ही शामिल होते हैं तो ब्लड प्रेशर, ये हो गया आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आके कैसे होते हैं। तो इसमें देखो तो सर हमारे ब्लड में कितनी परसेंट वाटर होती है? देखो आपके सेल्स के अंदर 90% ब्लड के अंदर वाटर होता है, लेकिन अगर हम देखें तो 90% इसके बाद अगर आप इसमें 60 देखें तो तकरीबन आयंस है 60 है, तो 60 तकरीबन 1% होते हैं, 7 to 8% रकम प्रोटीन होती है। इसके बाद 7 to 8% जो है ना ब्लड सेल में प्रोटीन्स हैं। इसके अलावा कुछ और मिला के 0.01%। ये प्लाज्मा के अंदर अगर आप देखें तो 90% ओवरऑल आपके बॉडी के अंदर, ओवरऑल बॉडी के अंदर भी 90% वाटर होता है। आपका ब्लड के अंदर भी 90%, ब्लड के अंदर भी 90% वाटर होता है। बेसिकली जो ब्लड सेल्स है ना, यस सर, इसको एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स है, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में सारा पार्ट है। और आपके 5 लीटर ब्लड है, बॉडी के अंदर 5 लीटर ब्लड होता है जो एडल्ट होता है, इसके अंदर 5 लीटर ब्लड है। 5 लीटर का जो 90% होता है ये वाटर। अगर ये ब्लड आप देखो